Hello students, so today we will start PYQs on atoms and nuclei. So I hope you have completed the chapter atoms and nuclei. So today we will see the questions regarding atoms and nuclei. So the first question you are seeing the screen, that the electron in a hydrogen atom first jumps from the third excited state to the second excited state and subsequently to the first excited state. The ratio of the respective wavelengths lambda 1 and lambda 2 of the photons emitted in this process is. तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो जम्प कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना. तो we know the formula from Balmer's formula. We know 1 by lambda equal to R or 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ये फॉर्मूला आता है हमारे पास फ्रॉम बाल्मर्स फॉर्मूला. बाल्मर ने ये फॉर्मूला दिया था. अब यहाँ पर क्या है कि हमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा कि n इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 4 से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन. n इज इक्वल टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n इज इक्वल टू 3. यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या होगी हम निकाल सकते हैं. 1 अपॉन लेमडा 1 विल बी इक्वल टू r 1 अपॉन ये रहेगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर. This is 1 upon lambda 1 is equal to r. R is a constant. 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square. Or and the second is to the first excited state, means it jumps from third excited state to second excited state and then second to first. Second to first means n is equal to 3 to n is equal to 2, है ना. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n is equal to 2 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n is equal to 3. तो इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n is equal to 3 to n is equal to 2. अब यहाँ पर कितना आएगा 1 अपॉन लैम्डा निकालो अगर, तो इट बिकम्स r 1 अपॉन 2 to the power 2 minus 1 upon 3 स्क्वायर. अब यहाँ से पूछा है कि रेशियो ऑफ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो पूछा है, तो इसमें रेशियो निकाल दो कितना हो जाएगा. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. If you divide both equations, what we get? We get 1 by lambda 1 और by आ जाएगा 1 upon lambda 2. This will be equal to r 1 by 9 minus 1 by 16 और divided by r 1 by 4 minus 1 by 9. ये करेक्ट. 1 by 9 minus 1 by 16 upon r into 1 by 4 minus 1 by 9. So it becomes 1 by lambda 1 into lambda 1 lambda 2 by 1 equal to r, and r will be cancelled out and it becomes 16 minus 9 by 9 into 16.
और divided by 9 minus 4 divided by 4 into 9. Okay. So now it becomes lambda 2 by lambda 1 equal to, uh, it becomes 8, sorry, it becomes 7 by 9 into 16 or into 4 into 9 by 5. तो कितना हो गया ये 9 and 9 cancel out. 4 1 जा 4, 4 6, 4 जा 16. So it becomes lambda 2 by lambda 1 equal to 7 by 20. So हमें पूछा है lambda 1 by lambda 2 पूछा है ना, तो lambda 7. So first option is correct. चेक करते हैं सही है कि नहीं. Wow, it's correct. Okay. Now the next question is question number 6. Taking the wavelength of first Balmer line in hydrogen spectrum n is equal to 3 to n is equal to 2 as 660 nanometer, the wavelength of the second Balmer line n is equal to 4 to n is equal to 2 will be. इसमें क्या करना है. फर्स्ट जो जंप हो रहा है कहाँ से, n is equal to 3 to n is equal to 2. आप चाहो तो इसे कॉपी कर लो. फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने करा है, हम ये यूज करेंगे इक्वेशन 1 by lambda equal to r into 1 by n square minus 1 by n2 square. ये था आपका क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. Okay, next question. Question number 6. Taking the wavelength of first Balmer line in hydrogen spectrum n is equal to 3 to n is equal to 2 as 660 nanometer. The wavelength of the second Balmer line n equal to 4 to n equal to 2 will be. तो again we will use the same formula. 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. And it is given that n is equal to 3 to n is equal to 2. And we get wavelength 660 nanometer. So n equal to 3 से n is equal to 2 के लिए हमें मिल रहा है lambda कितना 660 नैनोमीटर मिल रहा है. तो if we put here, suppose if we take lambda 1, so it becomes r or 1 by
2 square minus 1/3 square. Okay, so it becomes 1/λ1 equal to r, or 1/4 minus 1/9. If you solve this, 1/λ1 equal to r, or 9 minus 4/4 into 9. So it is 1/λ1 is equal to r, or 5/36. Again, it is given that the second wavelength, it is asked the second wavelength from n is equal to 4 to n is equal to 2. Now put the value n is equal to 4 to n is equal to 2. So it becomes 1 by, I say λ2 will be equal to r, or it becomes 1/2 square minus 1/4 square. Now if we solve this, what we get? We get 1/λ2 is equal to r, or 1/4 minus 1/16. So it becomes 1/λ2 is equal to r, or 16 minus 4/4 into 16. So it becomes 1/λ2 equal to r, 12/4 into 16. Now if you divide both equation, both 1/λ1 is equal to r into 5/36, and 1/λ2 is equal to r into 12/4 into 16. If you divide this, what we get? λ2 by λ1 will be equal to r, and r will be cancelled out. So it becomes 5/36 by 12/4 into 16. So it becomes λ2 equal to λ1 into 5/36 into 4 into 16 by 12. So if you cancel out here, 4 1 ja 4, 4 3 ja 12, and 16. 4 4 is 16, 4 9 ja 36. So what it becomes? It becomes λ1 into 20/26. And λ1 is given 660 nanometer, or it becomes 20/26, 27. Now here if you solve this, it becomes 3 2 ja 6, 3 2 ja 6, 0 by 3 9 ja 27. So now it becomes 0 0, 2 2 ja 4, 2 2 ja 4 by 9. Now if you solve this, here see, given options are given: 889.2 nanometer, 488.9, and third option is 462.7, and fourth option is 388. Now if you solve this, what we get? 9 1 जा 9, and 9 4 जा आएगा, है ना, फिर बाकी और भी आएगा। अब देखो ऑप्शन में तो आसानी जो है जल्दी करने के लिए क्या है, देखो कि ये 4 के ऑप्शन में 4 से शुरू हो रहा है, जो भी नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो 4 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में एक तो 8 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में 4 से, थर्ड में 6 से, फोर्थ में 3 से, तो सेकंड वाला सही होना चाहिए, बिकॉज ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी के लिए ना पूरा सोल्व मत करो, बल्कि यहीं पर ऑप्शन कर दो कि बी सही होना चाहिए। अगर आपने सही फॉर्मूला अप्लाई किया तो आंसर भी सही आएगा। तो देखो बी कर दिया हमने।
इट इज करेक्ट। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देखो कि 4 से शुरू होने वाला जो भी नंबर आएगा 4 से शुरू हो रहा है। तो बाकी ऑप्शन से देखो 8 है, 6 है, 3 है, छोड़ दो उसे। बी है तो उसे ले लो। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। हमने अगेन बाल्मर फॉर्मूला यूज किया है। 1/λ = r × 1/n1² - 1/n2²। ओके। Now the second next question is question number 7. A helium plus ion in its first excited state, its ionization energy is. What is ionization energy? हम इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाए? इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर हीलियम प्लस आयन है और ये अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर है, तो इसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए वो हम देखें पहले। क्वेश्चन नंबर 7। क्या हमारे पास है हीलियम प्लस आयन है, तो इट इज हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना। और इट इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स n शुड बी इक्वल टू 2 हेयर। इट मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर इसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो वी नो ई एन इज इक्वल टू -13.6 और Z² / n²। तो ये फॉर्मूला है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हम ये यूज करते हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पे कि E2 निकालना है हमें। E2 इट बिकम्स -13.6 और व्हाट इज जेड हियर फॉर हीलियम, इट इज 2 एटॉमिक नंबर, so it becomes 2 का स्क्वायर 4 by n is equal to 2, so it becomes 4, so 4 and 4 will be cancelled out, what we get, E2 is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी है अभी इसके पास। अगर हम इस हीलियम प्लस आयन को इतनी एनर्जी हम दे दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ जाएगा। मीन्स वी नीड टू गिव एनर्जी प्लस में, अगर हम इसे दे दें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ सकता है, बिकॉज एनर्जी बिकम 0, सो इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट फ्रॉम द एटम। सो आंसर क्या हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। The next question is question number 8.
Okay, next question is question number 8. Radiation coming from transitions n is equal to 2 to n is equal to 1 of hydrogen atoms fall on helium atom plus ions in n is equal to 1, n is equal to 2. States the possible transition of helium ions as they absorb energy from the radiation is. So what is given here? Here we have hydrogen atoms और यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है n is equal to 2 to n is equal to 1. This electron jumps from n is equal to 2 to n is equal to 1, and when electron jumps from 2 to 1, we know that in that case, photon will come out, means it emits radiation, and this radiation will fall on helium plus ions. So electron will get energy, means electron of helium plus ions will get energy. So if electron gets energy, then it can jump to higher orbit. So it is asked that what is the possible transition of for helium ion? Means electron will jump from 2 to 3 or 1 to 4 or 2 to 5 or 2 to 4. It is asked. Okay. So how will you do this question? First, let's see. Transition uh, is happening from hydrogen atom and from 2 to 1 in hydrogen atom. Transition is happening from n is equal to 2 to n is equal to 1. So in that case, what will be the energy of photon? We know uh, E2 will be equal to minus 13.6 upon 2 square, and E1 will be equal to minus 13.6 electron volt. So the energy of photon will be equal to E2 minus E1, and this will be equal to minus 13.6 by 4 and minus of 13.6. So if you solve this, what we get? We get minus 13.6 by 4 or plus 13.6. If you take common 13.6, so it becomes minus 1 by 4 plus 1. So what it becomes? 13.6 into 3 by 4. This is the energy difference, and this will be equal to the energy of photon. Okay, and this photon or this radiation falls on the helium plus ions. So for helium, uh, for helium ion, this energy difference will be equal to similarly if you solve for helium atom,
helium ions, it becomes 13.6, and Z square into 1 by 2 square minus 1 by n square. Okay, so is given helium ions in n equal to 1 and n equal to 2 states. So if the electron jumps from 2 to higher orbit, है ना, तो 2 से कहाँ जाएगा, n equal to 2 to 4 पे जा रहा है कि 5 पे जा रहा है या 3 पे जा रहा है, और एक और ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन में n equal to 1 to 4 जा रहा है. हम पहले चेक कर लेते हैं 2 से किसी पे जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन दे रहा है कि 2 से 2 से जंप कर रहा है, और एक ऑप्शन आपका 1 से जंप कर रहा है. हम चेक कर लेते हैं 2 से जंप करने में कितनी एनर्जी चाहिए इसे. तो जेड विल बी 2 फॉर हीलियम, तो 13.6 इंटू 4, 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर, और दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस एनर्जी, एनर्जी से मिल रही है. तो व्हाट वी गेट, 13.6 into 3 by 4 is equal to 13.6 into 4 or 1 by 4 minus 1 by n square. So this 13.6 and this 13.6 will cancel out. So what we get? We get 3 by 16 equal to 1 by 4 minus 1 by n square. We get what we get? 1 by n square equal to 1 by 4 minus 3 by 16. So it becomes 16 minus 12 by 4 into 16. It is 1 by n square. Now if you solve this, what we get? We get 4 by 4 into 16. 4 and 4 will cancel out. 1 by n square. So n becomes 4. Okay. So our answer is n equal to 2 to n equal to 4. D is correct option. Okay. Just see the solution. First, we have derived for a hydrogen atom, and electron jumps from 2 to 1. Hello. Hello. Any doubt? Who is here? Sir, please check the chat box. Chat box. This is the correct answer. Just a minute. Any question from boys? Algol?
Excuse me, sir. Okay, let's Sir, ask can the you question. box? Okay, what's your question? Okay, put your question, please. Okay, I repeat this question. Okay. So in question it is given that radiation coming from transitions n is equal to 2 to n is equal to 1 of hydrogen atom. We have a hydrogen atom and radiation comes from this hydrogen atom and a transition is happening from n is equal to 2 to n is equal to 1. So in this case we can find the energy of photon, and this energy of photon is given to helium plus ions. Okay, so first we have derived the energy for hydrogen atom, and we have written n is equal to 2 to n is equal to 1. Transition is happening from n is equal to 2 to n is equal to 1. And in this case, we derive the energy difference from 2 to 1. So it becomes E2 minus E1 is equal to minus 13.6 by 4 minus of 13.6. Is it correct? Okay, so energy difference becomes 13.6 into 3 by 4. Okay, so this energy is given to helium plus ion. For helium plus ion, we have derived the energy difference. So again, we can find, we know that energy at any nth orbit is equal to minus 13.6 or z square by n square for any arbitrary atom, hydrogen-like atom, and we have given it is helium atom. So Z will be 2 for helium atom. So if you check from n is equal to 2, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अभी सेकंड ऑर्बिट पर है, सेकंड से कहाँ पर जाएगा वो निकालना है हमें. n is equal to 2 हमें कहाँ पर निकालना है वो निकालना है. n क्या कहाँ होगा, n टू 2 to 3 होगा, 2 to 4 होगा, 2 to 5 होगा, ये निकालना है हमें. तो उसके लिए हमने ये चेक किया कि if you write the equation E n minus E2 करेंगे for helium plus ion, so it becomes minus 13.6 or 4 into 4 by n square, and if the electron is in orbit 2, so it becomes minus of minus 13.6 into 4 by square of 2. Okay, so if you take common, it becomes 13.6 into 4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा minus 1 by n square, or it becomes minus plus 1 by 4. So the same I have written here. Just see, this I have written 13.6 into 4 or into 1 by 2 square minus 1 by n square. If you solve this, or this energy is given from the radiation coming from hydrogen atom, or energy
we have derived this energy 13.6 into 3 by 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी हमें मिल रही है और यही एनर्जी यहाँ पर इसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को Good इतनी evening, एनर्जी मिल। sir. हाँ, गुड इवनिंग। Can you check the chat box, sir? चार्ट बॉक्स? Yes, sir. चार्ट बॉक्स क्या होता है? जस्ट अ मिनट। सर ये मोर को क्लिक कर। रिपीट 8 क्वेश्चन सर। अच्छा, तो रिपीट मैंने कर लिया। और क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन 3। अभी और कोई डाउट है क्या? ये 8 नंबर मैंने रिपीट कर दिया। आगे बढ़े क्या? सर हमको अगर डाउट होगा तो आपको इधर ही पूछेंगे। अच्छा, पूछो क्या डाउट है अभी तक। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट यू कैन आस्क। लेक्चर के बीच में। ओके, पूछो ना। ये क्वेश्चन मैंने दिया, इसमें से कहाँ से मैंने स्टार्ट किया? मैंने यहाँ शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट है क्या? ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व किया, इसमें कोई डाउट है? फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6। और क्या पूछ रहे हैं सर? कंटिन्यू द क्लास। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन हाइड्रोजन एटम इनिशियली in the ground state is excited by absorbing a photon of wavelength 980 angstrom. The radius of the atom in the excited state in terms of Bohr radius A naught will be। क्या पूछा है इसमें? एक हाइड्रोजन एटम है, इसमें इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय द ऑब्जर्विंग अ फोटोन। अभी जो हाइड्रोजन एटम क्या है, ये अपने ग्राउंड स्टेट पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो n = 1 पर है। अब यहाँ से
इसे एक फोटोन मिल रहा है जिसकी वेवलेंथ है 980 एंगस्ट्रॉम। अब कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नोट विल बी। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि जो वेवलेंथ जो है इसकी 980 एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी हम निकाल सकते हैं क्या होती है, एच सी बाई लेमडा, ये एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी अगर मिलेगी इस एटम को, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके रहेगा, ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर जाएगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ पर एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है ना। अगर एन निकल आएगा तो उसके बाद जो है हम ये रेडियस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में रेडियस क्या होता है आपका, तो रेडियस जो है ना वो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, है ना। तो अगर एन निकाल लेंगे तो फिर हम ये आसानी हो जाएगी। तो हमें पहले एन निकालना पड़ेगा। एन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी कितनी मिल रही है, एच सी बाई लेमडा, इतनी एनर्जी मिल रही है। और एच सी की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, एच सी की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, 12,400 बाई लेमडा है 980, है ना। इतनी एनर्जी मिल रही है, तो एन की वैल्यू में निकालना पड़ेगा। मतलब कि अपने ग्राउंड स्टेट से है, ग्राउंड स्टेट पर है, और फिर वो किस ऑर्बिट पे जाके लाई करेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें जो है ऐसा निकालना पड़ेगा, ई एन माइनस ई नोट, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ई एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस 13.6, है ना। इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पर होता है तो कितनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी होती है 13.6। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 13.6 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या मिला मुझे, 1/n² और प्लस 1। अच्छा, और ये एनर्जी किसके बराबर होगी, इस एनर्जी के बराबर होगी जो इसे एनर्जी मिल रही है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नाउ पुट द वैल्यू 12400 बाई 980, दिस विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना है। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। इसको ऐसे कर सकते हो, ये 1240/998 इक्वल टू 13.6, और ये 1 माइनस इतना हो गया। अब यहाँ से ये जो है आ गया आपका 1/1, 1 - 1/n², दिस विल बी इक्वल टू 1240/98 इंटू 13.6। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन सॉल्व करना है इसे, आपकी जो है ना n की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर ये 4 आ गया, तो हमने क्या बताया कि जो रेडियस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है n² के। मतलब कि ये जो r जो हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा n² इंटू ए नोट। ये ए नोट क्या है आपका, बोर रेडियस ए नोट, सो दिस विल बी इक्वल टू 16 इंटू ए नोट, ये हो जाएगा। दिस इज आंसर ऑफ this question, the radius of the atom in the excited state
in terms of bore radius A naught is 16 A naught. So third option is correct. Is it clear? इसको आप लोग सोल्व करना कितना होता है। n की वैल्यू जो है ना, अगर पॉइंट में आएगा तो फिर जो है ना, जो अप्रोक्स जो न्यूमेरिकल है, जो इंटीजर पार्ट है उसे हम लेते हैं। अगर आपको पॉइंट में आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम जो है जो इंटीजर पार्ट है उसे लेते हैं कि n की वैल्यू जो इंटीजर में होनी चाहिए 1 2 3 4 ऐसा। ओके, चेक कर लो। हाँ, इट्स करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। इन a hydrogen like atom, when an electron jumps from the M shell to the L shell, the wavelength of emitted radiation is lambda। ये I दिखाई दे रहा है आपको? ये I नहीं है, lambda है। If an electron jumps from N shell to L shell, the wavelength of emitted radiation will be। इसे ट्राई कर सकते हैं आप लोग। इसे ट्राई कीजिए आप लोग। M से L जंप कर रहा है, तो जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ लेमडा है। और अगर ये जंपिंग जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो एन शेल से एल शेल पे होगा, देन व्हाट विल द रेडिएशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो if electron jumps from m to l, then it is lambda. If the electron jumps from n to l, then what is lambda? Just try this question. ट्राई कर रहे हैं क्या आप लोग? चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम m shell to l shell। ओके, तो m टू l हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि it jumps from n equal to 2 to n is equal to 3। So we know the formula from Balmer's formula, 1 by lambda equal to r 1 by 2 square minus 1 by 3 square। ओके, तो 1 by lambda क्या हो जाएगा? ये r
1/4 minus 1/9. 1 by lambda is equal to R, or it becomes 9 minus 4/4 into 9. 1 by lambda equal to R, or 5/36. Now it jumps from N shell to L shell. It means it jumps from N is equal to 4 to N is equal to 2. So 1 by lambda will be equal to R, or 1 by 2 square minus 1 by 4 का स्क्वायर. इसको लेमडा डैश कह दो, हमें लेमडा निकालना है. हमें 1 by lambda डैश इज इक्वल टू R, और 1/4 minus 1/16. तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 by lambda डैश इज इक्वल टू R, और ये हो गया आपका 16 minus 4/4 into 16. तो it becomes 1 by lambda डैश इज इक्वल टू R, और ये कितना हो गया? 12. 4 into 16. ये lambda डैश की वैल्यू है 1 by lambda डैश, और 1 by lambda कितना आया है? ये आया है. अगर हम इसको डिवाइड दे दें तो हमें निकल के आएगा, lambda डैश निकल के आएगा. If you divide these both equation, this and this equation, so what we get? Lambda dash will be equal to 5/36 by 12/4 into 16. तो कितना आ रहा है lambda dash? इंटू lambda, यहाँ पे lambda dash by lambda भी है, तो lambda dash equal to lambda into 5/36 into 4 into 16 by 12. Now solve this. What we get? We get 4 into 3, 4, 4, 4 1 4, 43 12, और क्या आ जाएगा? 4 4 16, 4 9 जा 36. So what we get? We get 20/27 lambda. ये lambda डैश की वैल्यू है. Means fourth option D is correct, I think. क्या सही है ये? क्या करेंगे? M to L, तो 2 to 3 हो रहा है, ये हमने निकाल लिया lambda की वैल्यू, इतना lambda है. अब यहाँ पे निकाला हमने 4 to 2 हो रहा है ट्रांजिशन, तो इस केस में हमने lambda डैश निकाला. 1 by lambda इक्वल टू सेम इक्वेशन. सो हमने ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे दिया, तो 1 by lambda है और यहाँ पे 1 by lambda डैश है. डिवाइड करोगे तो lambda डैश ऊपर चल जाएगा. lambda डैश by lambda विल बी इक्वल टू, ये सब आ गया, तो यहाँ से ये lambda की वैल्यू आ रही है. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट. Okay, next question is, the ratio of mass densities of nuclei of calcium and oxygen is close to. ये क्वेश्चन है. आप लोग सॉल्यूशन कॉपी करते हैं क्या? इसे कॉपी कर लो, क्वेश्चन भी कॉपी करो और सॉल्यूशन भी कॉपी करो, वरना ऐसे स्क्रॉल करता जाऊंगा तो खत्म होता जाएगा.
तो कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सॉल्यूशन है। Okay, next question is question number 11. The ratio of the mass densities of nuclei of calcium and oxygen is close to. मास डेंसिटी पूछा है, रेशियो क्या होगा न्यूक्लियाई कैल्शियम का और ऑक्सीजन का। कोई बताएंगे क्या होना चाहिए इसमें? एनीवन? कैल्शियम और ऑक्सीजन है, इसमें बताना है कि मास डेंसिटी की रेशियो क्या होगा। ओके ओके, 5 मिनट में चेक करना है। ठीक है, चेक करूंगा। इसका बताओ क्या होगा 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। The ratio of the mass densities of nuclei of calcium and oxygen is close to.
तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या है ना कि अगर हम बात करें न्यूक्लियस का जो रेडियस की बात करें अगर हम, तो क्या होता है रेडियस? ये होता है R इक्वल टू R0 और A⁻⁻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 ⁻
रेडियस, और ए क्या है यहाँ पर, मास नंबर। अब यहाँ पर से अगर मैं इसका जो है वॉल्यूम निकालूं, के वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो इट बिकम्स 4/3 और पाई, और आर हो जाएगा आपका R0 क्यूब इंटू ए। अब यहाँ से अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। और मास कितना आ जाएगा, अगर हमने मास नंबर ए लिया है, तो इसका मास कितना आ जाएगा, मास नंबर ए के लिए, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास नंबर, टोटल मास हो जाएगा इस न्यूक्लियस का, बाई वॉल्यूम क्या आ रहा है, 4/3 पाई, और ये R0 का क्यूब इंटू ए। तो देखो यहाँ से क्या क्या हो गया, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो देखो डेंसिटी क्या आ रही है, ये बिल्कुल कांस्टेंट टर्म ना, डेंसिटी जो है पूरी, ये मास ऑफ प्रोटॉन है 4/3 पाई, और R0 क्यूब, R0 भी है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है ना वो डिपेंड नहीं करती है मास नंबर पर। तो डेंसिटी जो है ना ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियस की सेम होती है डेंसिटी, मास डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस। तो कैल्शियम का और ऑक्सीजन का पूछा रेशियो क्या होगा, तो 1 होगा, बस दोनों का सेम आएगा, तो 1 विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन द मास नंबर। तो कैल्शियम की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें, दोनों का सेम आएगा, तो रेशियो 1 होना चाहिए। किसी ने जवाब दिया था, फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये 13 ट्राई करो। टू रेडियोएक्टिव मटेरियल्स ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट्स 10 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of A to that of B will be 1 by E after a time. मतलब कितने टाइम के बाद ये पूछा है, रेशियो यहाँ पर 1 by E होने वाला है, टाइम पूछा है। ये डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, ए और बी का जो डीके कांस्टेंट्स वी हैव गिवन 10 lambda and lambda respectively. Initially they have the same number of nuclei. Initially they have same number of nuclei. So then the ratio of the number of nuclei of A and B after some time is 1 by E. तो टाइम पूछा है कितना होगा, कैसे निकालेंगे।
Can you solve this question? क्वेश्चन नंबर 13, इसे ट्राई करो। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है। n इज इक्वल टू होता है n नोट e टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये फॉर्मूला होता है, इस पर निकालना है हमें। तो इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो पूछा है कि कितने टाइम के बाद दोनों की जो है, और डी के कांस्टेंट जो दे रखा है आपका, एक का 10 लेमडा है, दूसरे का लेमडा है। मीन्स जो लेमडा है, एक के लिए 10 लेमडा है, दूसरे के लिए लेमडा है। तो बताना है कि रेशियो 1/e कितने टाइम के बाद हो जाएगा। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। इनिशियली जो एन नोट है दोनों के लिए सेम है। एक को ऐसा N1 मान लो, एक को N2 मान लो, फिर रेशियो 1/e दे रखा है। जस्ट ट्राई दिस, इट्स वेरी इजी।
Okay. So if you write n1 is equal to n naught e to the power minus 10 lambda t, or for the second material b, n2 will be equal to, n नोट दोनों का सेम है, e to the power माइनस लेमडा टी। अब पूछा इसका जो रेशियो हो रहा है वो 1/e हो जा रहा है, मतलब कि मैं इसको डिवाइड दे दूंगा ऐसा, तो क्या हो जा रहा है, ये 1/e हो जा रहा है, और दिस बिकम्स e to the power माइनस 10 lambda t by e to the power माइनस में माइनस लेमडा टी। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें टी निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो यहाँ पर जो है, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, e to the power माइनस लेमडा टी और बाई ई इक्वल टू e to the power माइनस 10 लेमडा टी। ओके, सो इट बिकम्स, देखो e to the power ये है आपका, और अपॉन में e to the power 1 है, तो व्हाट वी कैन राइट, लेमडा टी माइनस 1, इट बिकम्स e to the power माइनस 10 लेमडा टी। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, माइनस लेमडा टी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 10 लेमडा टी। ओके, सो इट बिकम्स, इसको इधर लेके और क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा टी और प्लस हो गया 10 लेमडा टी इक्वल टू 1, इट बिकम्स 9 लेमडा टी इक्वल टू लेमडा। सो टी कितना आ रहा है, 1/9 लेमडा, 1/9 लेमडा। तो फर्स्ट करेक्ट हो रहा है, किसने आंसर किया? वेरी गुड। इसे नहीं किया वो कॉपी करो इसे।
The similar question is this question number 14. Let's try this. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस में रेशियो 1/e का होल स्क्वायर है. ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14. और इसमें जो डी के कांस्टेंट है वो 5 लेमडा और लेमडा रिस्पेक्टिवली. और sample has the same number of the two nuclei. The time taken for the ratio of the number of nuclei to become 1/e whole square will be. Same question है. The same equation we will use. N is equal to n naught or e to the power minus lambda t. So n1 is equal to n naught e to the power minus 5 lambda t. और n2 is equal to n naught e to the power minus lambda t. तो रेशियो पूछा है, रेशियो निकालो. n1 by n2 this is equal to e to the power minus 5 lambda t by e to the power minus lambda t. तो रेशियो क्या हो जा रहा है, 1/e square is equal to 5 lambda t by e to the power minus lambda t. Now it becomes e to the power minus lambda t by e square e to the power 2 is equal to e to the power minus 5 lambda t. So we can write here minus lambda t minus 2 will be equal to minus 5 lambda t. So it becomes minus lambda t plus 5 lambda t will be equal to 2. So it is 4 lambda t equal to 2. So t will be equal to 1/2 lambda. So first option is correct. Excuse me, sir.
Can you check the chat box? Okay. 1/2 lambda. Okay, very good. The next question is question number 15. Just try this question. इसमें क्या दिया हुआ है? In the radioactive decay chain, the initial nucleus is given here. At the end, there are 6 alpha particles and 4 beta particles which are emitted. ये यहाँ पर कुछ रॉन्ग है क्वेश्चन में. यहाँ पर ये 4 बीटा नहीं, ये बीटा प्लस डीके हो रहा है यहाँ पर. इट इज बीटा प्लस डीके. ओके, which are emitted. If the end nucleus is given, और हमें बताना है यहाँ पर ए और जेड क्या होगा. इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा ये निकालना है हमें. ए और जेड की वैल्यू बताना है क्या होगा. यू हैव गिवन ऑप्शंस. जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन.
Okay. So what we have given? We have given that ये कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है और टी और ये 232 है। अब क्या रहेगा 6 अल्फा पार्टिकल करेंगे तो 6 अल्फा पार्टिकल्स एंड 4 बीटा पार्टिकल्स। 4 बीटा प्लस डीके हो रहा है यहाँ पर ये, विच आर एमिटेड इफ द एंड ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन हेयर, एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें ए और जेड बताना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज हीलियम, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, है ना। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है इट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, है ना। तो ये होता है आपका ये 2 और ये 4 होता है, तो ये 6 निकल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर ये निकल जा रहा है यहाँ पर तो ये 6 आपका जो है यहाँ पर जो जेड में जो कमी आएगी वो 6 × 2 मीन्स जो है आपका फर्स्ट टाइम ये आपका 12 कमी आ रही है इसमें एटॉमिक नंबर में, और मास नंबर में कितनी कमी आएगी, तो 4 × 6, तो नाउ इट बिकम्स कितनी कमी आ गई, 90 में 12 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बच रहा है, 78। तो इससे आपको वाई बना, और ये हो गया आपका 78, और ये 24 मास नंबर में कमी आ रही है, तो कितना बचेगा, 232 में 24 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है, ये 802 208। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें से 4 बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो बीटा पार्टिकल में क्या होगा, क्वेश्चन 4 बीटा पार्टिकल, अच्छा जी, बीटा माइनस डीके हो रहा है इसमें, क्वेश्चन इज सेम हियर, बीटा माइनस, तो बीटा माइनस डीके हो रहा है, इसमें क्या होगा यहाँ पर से 78 और 208, इट बिकम्स एक्स और 82 208। यहाँ पर से एटॉमिक नंबर यहाँ पर 4 ऐड हो जाएगा 4 बीटा पार्टिकल में,
तो इन बीटा माइनस डीके क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 15। Okay, next question is okay, that is question 24 number. An unstable heavy nucleus at rest breaks into two nuclei which move away with velocities in the ratio of 8:27. The ratio of the radii of the nuclei is, जो न्यूक्लियस के जो रेडियस है उनमें क्या रेशियो आगे ये पूछा है। कोई हैवी न्यूक्लियस है, वो ब्रेक हो रहा है दो न्यूक्लियाई में, और उसकी जो वेलोसिटी दोनों की वो 8:27 है। तो पूछा रेडियस जो न्यूक्लियस की होगी उसमें क्या रेशियो आएंगे। Let's try this question. ये ट्राई करो 24 नंबर। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस है एट रेस्ट, तो रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर 0 हो गया। रेस्ट पर है तो ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियाई विच मूव अवे विथ वेलोसिटीज इन द रेशियो, ये दे रखा है आपका 8:27। तो उसके रेडियस में क्या रेशियो होगा ये पूछा है। तो जस्ट कंजर्व द मोमेंटम, यू कैन कंजर्व हियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करो।
कितना आ रहा है इसका आंसर? 24 number. Unstable heavy nucleus at rest breaks into two nuclei which move away with velocities in the ratio इतना देगा. तो V1 by V2 is given here 8 by 27. अगर यहाँ पर हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इफ कंजर्व द मोमेंटम, we can write here m1 v1 will be equal to m2 v2. दोनों का जो मोमेंटम वो इक्वल होगा, बिकॉज जो इनिशियल जो न्यूक्लियस था, जो अनस्टेबल था, वो रेस्ट पर था. तो अभी जो दो जो न्यूक्लियस बने हैं वो क्या, उनकी जो मोमेंटम विल बी इक्वल. अब यहाँ से अगर हम बात करें m1 बाई m2 की बात करें, दिस इज इक्वल टू v2 बाई v1, और m1 बाई m2 क्या हो जाएगा? v2 बाई v1 इज इट बिकम्स 27 बाई 8. ओके, सो पूछा है कि रेडियस के में क्या रेशियो होगा, न्यूक्लियस के जो रेडियस होंगे उसमें क्या रेशियो होना चाहिए. तो क्या होगा रेडियस? वी कैन फाइंड फ्रॉम डेंसिटी, मास डेंसिटी, इट बिकम्स rho equal to mass upon volume. Okay, and mass will be equal to rho into ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इट इज वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम. वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r cube. Okay, so if you write here m1 and m2, so it becomes uh, rho 4/3 पाई और r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय rho 4/3 पाई r2 cube. This will be equal to 27 by 8. ओके, रॉ यहाँ पर क्यों सेम लिया हमने दोनों के लिए? डेंसिटी दोनों के लिए सेम लिया क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो अप्रोक्स सेम होती है सारी न्यूक्लियस की. तो हमने रॉ दोनों के लिए सेम लिया. तो देखो ये पार्ट जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट वी गेट r1 बाई r2 होल, सॉरी 2 होल क्यूब विल बी इक्वल 27 by 8. सो r1 बाई r2 क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 27 by 8 टू द पावर 1/3. और 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? r1 बाई r2 इज इक्वल टू 3/2. सो ये रेशियो है, 3:2 का रेशियो आ रहा है, 3:2. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये करेंगे, ये कॉपी कर लो, जिसे नहीं किया कॉपी कर लो इसे. सो वी कैन कंजर्व यहाँ मोमेंटम. यहाँ पर हमने मोमेंटम कंजर्व किया. सो लिख लो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
इसे कॉपी कीजिए आप लोग। नेक्स्ट इज ये है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज just try this question 27 number. Some energy levels of a molecule are shown in the figure. The ratio of the wavelengths lambda 1 and lambda 2 is given by. एनर्जी लेवल यहाँ पर गिवन है। देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसकी एनर्जी है -E टू -4/3 E लैम्डा 2 के लिए। और फिर एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है जो कि -E टू -2E। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 में रेशियो क्या होगी ये बताना है। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन 27 नंबर। क्लास है क्या? अच्छा, जस्ट अ मिनट। ये ट्राई किया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 27। तो ये क्या हो रहा है? -E हम निकालते हैं, लैम्डा 1 के निकालते हैं, -E से आ रहा है -2E। तो -E माइनस ऑफ -2E, दिस विल बी इक्वल टू HC/λ1। ओके, सो इट बिकम्स -E और +2E इज इक्वल टू HC/λ1। सो इट बिकम्स E इक्वल टू HC/λ1। ओके, और नेक्स्ट पूछा है -E टू -4/3E। तो -E माइनस माइनस ऑफ 4/3E, दिस इज इक्वल टू HC/λ2। so it becomes -E minus minus plus 4/3E equal to HC/λ2। so it becomes -3 plus 4, it becomes 1/3, E/3 is equal to HC/λ2। so ये आपका है एक लैम्डा 1 के लिए, ये लैम्डा 2 के लिए। हमें रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे हम? ऐसा करो, E/3/E is equal to HC/λ2 और इंटू λ1/HC। इज इट करेक्ट? तो देखो, E से E गया, HC से HC गया, तो क्या मिला हमें? λ1/λ2 इज इक्वल टू 1/3।
ये है रेशियो, ऑप्शन दिया हुआ है, ये रेशियो लेमडा वन बाई लेमडा टू। यहाँ पे आर पूछा है, आर इज इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू, वही रेशियो है। यहाँ पे रेशियो इज इक्वल टू 1/3, सेकंड ऑप्शन। किसने रिप्लाई किया था? वाह, वेरी गुड। You all have become very smart, I think. रिप्लाई कर रहे हैं आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर जस्ट ट्राई करो। 9 it becomes 940. We'll close after this question. The acceleration of an electron in the first orbit of the hydrogen atom. Stop. Okay, now we will stop here. Yesterday I will start. I will continue. Okay, thank you very much. वालेकुम अस्सलाम। अलगोल कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह आई विल कम वेरी सुन। ओके ओके, आई विल कम वेरी सुन इंशाल्लाह। I think day after tomorrow I will reach there. Okay, sir. Okay, good night. बिल्कुल पक्का पक्का। ओके, गुड नाइट। Okay, bye bye. Just go for salat and then go to your dormitory. अच्छा, खाना हो गया आप लोगों का? ओके बाय। कैन स्टॉप?